अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपना न्यू चैप्टर जो कि है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स को क्लास हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, नरगिस के फूल भी कहते होते हैं। इफ़ यू ऑल रिमेंबर, जब हमने स्टार्ट किया था इस बुक को तो हमने कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स पे पढ़े थे, डैफोडिल्स के भी हमने बारे में डिस्कस किया था। सो डैफोडिल का हमने कुछ थीम डिस्कस किया था कि डैफोडिल क्या है। सो इफ़ यू ऑल रिमेंबर और इफ़ यू आर नॉट रिमेंबरिंग, इट्स ओके, वी कैन रिव्यू इट अगेन। डैफोडिल्स बेसिकली नरगिस के फूल हैं। इसमें क्लास ये एक पोइम है। अब इसमें एक नेचर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, रिगार्डिंग द नेचर, द रिव्यूज ऑफ द पोइट अबाउट द नेचर, दैट हाउ इज ही लविंग द नेचर। वो नेचर की एक एक चीज़ को, उस फ्लावर की खूबसूरती को किस तरह से वो डिफाइन कर रहा है। हाउ इज ही एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स ओवर दैट एक्सपीरियंस दैट ही इज लिविंग ओवर देयर राइट नाउ। सो ये हम सब कुछ इस पोइम में पढ़ेंगे। अब इस पोइम का जो पोइट है वो कौन है? इस पोइम की जो क्लास पोइट है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्होंने ये पोइम लिखी है। ही इज द पोइट ऑफ दिस पोइम एंड वी आर गोइंग टू review the views of William Wordsworth that he experienced by viewing daffodils. Okay class, so let's begin with it. I hope you're gonna love this poem. So let's begin. सबसे पहले क्लास हम स्टार्ट करते हैं, इस पोएम के अबाउट को पढ़ते हैं. What is about? What is overview of this poem? So open up the books, page number 32, and let's begin with it. Daffodil is one of the William Wordsworth's most famous poems. It was inspired by a walk Wordsworth took his sister Dorothy near Ullswater in Lake District, April 15, 1802, where they encountered a long belt of daffodils. William Wordsworth, 1770–1850, was a key figure in English Romantic movement. Born in Cockmorth, England, he developed a deep love for nature, which became a central theme in his poetry. Wordsworth believed that nature had the power to inspire and heal the human spirit. So, class, the basic theme and the basic overview of this poem is that we will be discussing about the nature. That how Wordsworth is loving the nature. उन्होंने कितनी खूबसूरती से उसको बयान किया है, बताया है. Along with that, a mini history of William Wordsworth is also given, that how he discovered daffodils, with whom he went to see daffodils. So he went to see daffodils with his sister Dorothy, and along with that, where he was born and his nature, his romanticizing thing and loving the nature is mentioned in this passage. So let's begin with reading the poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So, class, in this stanza, firstly, I'm going to tell you about difficult word meanings along with a synonym. Then we will be discussing its translation and the questions given to us. Okay, so let's begin with it. Okay, class, now let's begin with some difficult word meanings that are mentioned in the first stanza. So, as you can see, I have mentioned some of the words over here which I felt will be difficult for you. So, let's begin with the translation along with the meanings of this word. Wandered. जैसे कि आप देख सकते हो क्लास, यहाँ पे पहली लाइन लिखी थी, I wandered lonely as a cloud. Wandered means to roam, घूमना. ठीक है, तो wandered का मतलब क्या होगा? Roamed. Roamed, wandered, इसको तो हम कहते हैं क्लास घूमना. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वेल्स. वेल्स का बेसिकली सिनोनिम है, कंप्लीट जो वर्ड बनता है दैट इज वैली. ठीक हो गया. वेल्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम वैली, सो द सिनोनिम विल बी वैली. और हम क्लास वैली को उर्दू में क्या कहते हैं? वादी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्राउड. क्राउड होता है क्लास गैदरिंग होना, बहुत ज़्यादा रश होना एक प्लेस पे. सो इसका सिनोनिम क्लास हमारे पास बनता है गैदरिंग. उर्दू में हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लोगों का होना.
बहुत ज़्यादा लोग. Now next word is host. होस्ट यहाँ पे क्लास दिया हुआ था, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. होस्ट मीन मतलब होता है प्रेजेंट करना, यानी प्रेजेंटर. सो होस्ट सिनोनिम होगा हमारे पास क्लास प्रेजेंटर. अ होस्ट इज अ प्रेजेंटर. प्रेजेंटर होस्ट का मायने क्या होता है क्लास? हम उर्दू में इसको कहते हैं मेज़बान. कहा जाएगा इसको, देखिएगा, मेज़बान. ठीक है. नाउ द सेकंड लास्ट वर्ड इज बिनेथ. बिनेथ मीन्स अंडर, किसी चीज के नीचे होना. सो बिनेथ का सिनोनिम क्या है हमारे पास? अंडर. उर्दू में इसको कहते हैं क्लास नीचे. ठीक है. नाउ द लास्ट वर्ड इज फ्लटरिंग. फ्लटरिंग का क्लास क्या मीनिंग होता है? फ्लटरिंग का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग मतलब होता है यहाँ पे सिनोनिम फ्लैपिंग, फ्लिकरिंग. सो द सिनोनिम विल बी फ्लैपिंग और फ्लिकरिंग. ठीक है. अब इसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? फ्लटरिंग करना, फ्लटर करना, फ्लैप करना, फड़फड़ाना. So class, these are the words along with the synonyms and its meaning in Urdu. I hope you all can see them very clearly. हमने एक एक वर्ड का सिनोनिम और मीनिंग यहाँ पे लिख दिया है. अब हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं इस पैसेज की उर्दू ट्रांसलेशन को. So let's begin with the Urdu translation of this passage. Sorry, the stanzas translation. So shall we begin, class? Before that, take out your registers and pencils and do write it down in your registers or notebooks, whatsoever you're having right now. So let's begin the translation. I wandered lonely as a cloud. एक दिन मैं तन्हा घूम रहा था जैसे एक बादल. That floats on high over vales and hills. जो पहाड़ों और वादियों में तैरता है. When all at once I saw a crowd. जबकि अचानक मैंने एक हजूम देखा. A host of golden daffodil. सुनहरे गुलनरगिस का हजूम. Beside the lake beneath the trees. झील के किनारे के नज़दीक और दरख्तों के नीचे. Fluttering and dancing in the breeze. वो हवा में झूम और नाच रहे थे. So class, ये हमारी first stanza की translation थी. I hope it's very clear to all of you. In case you are facing any sort of difficulty, you can look after the words that I have mentioned over here for the meaning and synonym. Now class, as you can see, हमारे first stanza के साथ हम एक छोटा सा box में कुछ questions given हैं. So let's discuss these questions as well one by one. The first one is, who is the speaker in the poem and what is he doing in the beginning? So class, speaker कौन है इस poem का? William Wordsworth. ठीक हो गया जी. एक part हमने clear किया कि William Wordsworth is the speaker of the poem. And what is he doing in the beginning? वो beginning में क्या कर रहे थे? He was wandering lonely in a valley. ठीक है, वो एक जगह पे घूम रहे थे. So क्या होगा क्लास इसका आंसर? The speaker of this poem is William Wordsworth and he was roaming lonely in the valleys and hill. This will be the answer of the first question. Now let's move towards the second question. Which natural element is compared to it in the first line? So class, कौन सा natural element को हमने compare किया in the first line? In the first line we have compared the natural element that is a lonely cloud. ठीक है, lonely cloud को compare किया गया है. Now moving towards the third question, where does the speaker encounter the daffodils and how are they described? So speaker कौन है? William Wordsworth. Where did he encounter daffodils? So beside the lake beneath the trees. ठीक है, the speaker encountered daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. That's how he encountered and he described the daffodils. So let's move towards the next stanza, class, shall we? So focus towards your books, page number 32. Okay, a continuous as the stars.
that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in a never ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their head in sprightly dance. सो क्लास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस स्टेंजा के कुछ वर्ड मीनिंग्स को, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी ट्रांसलेशन पे चलेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑफ द स्टेंजा. ओके क्लास, सो एज यू कैन सी मैंने स्टेंजा नंबर 2 में जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे मैंने मेंशन अप कर दिए हैं. अब हम वन बाय वन एक एक वर्ड को डिस्कस करते हैं along with its synonym and its meaning. So let's begin with the first word, continuous. Continuous हमने several times हमने previous chapters में भी पढ़ा है. तो continuous क्या होता है? Something that is going on जो कि continuous है, ठीक है, constant होना. तो इसका synonym क्या है हमारे पास class? constant. और continuous का synonym constant है, and constant means मुस्तकिल, ठीक है जी. Now next word is twinkle. Twinkle का synonym class में पास होता है to sparkle. Twinkle it, sparkle it. So twinkle का meaning क्या होगा? Sparkle. और हम इसको क्लास उर्दू में क्या कहते हैं? चमकना. चमकना भी कह सकते हैं आप, टिमटिमाना भी कह सकते हैं, बट आई फील चमकना लिखना ज़्यादा ईजी है, मैंने यहाँ पे चमकना लिखा है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मार्जिन. मार्जिन आप वैसे भी वर्ड यूज करते ड्रॉ द मार्जिन लाइंस. तो मार्जिन का मेन सिनोनिम क्या होगा? लाइंस. और इसको हम लोग क्लास उर्दू में क्या कहते हैं? हाशिया. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बे. बे क्या होता है क्लास? ये जो वर्ड है ना बे, इट इज अ ब्रॉड एरिया इनलेट ऑफ सी. बे होता है समंदर का किनारा, ठीक है. सो बे का जो सरनेम होता है इट इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ सी इनलेट. ब्रॉड सी इनलेट. इसको हम लोग उर्दू में क्लास साहिल भी कह देते हैं, बंदरगाह भी कहते हैं. सो साहिल और बंदरगाह मैंने दोनों यहाँ पे अल्फाज लिख दिए हैं. नाउ सेकेंड लास्ट वर्ड इज टॉसिंग. टॉस इट. टॉस करना, हम जैसे चीज को फेंकना, तो टॉस का होगा थ्रो करना. टॉसिंग इट, थ्रोइंग इट. अब टॉस करना, थ्रो करना, तो क्लास हम किसी चीज को टॉस अप कर रहे हैं या थ्रो करते हैं तो हम उसको उर्दू में क्या कहते हैं? फेंकना. Now the last word is sprightly. Sprightly dance. Sprightly का मीनिंग क्लास हमारे पास होता है lively. ठीक है जी, क्या मीनिंग होगा हमारे पास सिनोनिम इसका? lively. इसका क्लास हमारे पास मीनिंग होता है चुस्त भी होना या पुरजोश. ये दो अल्फाज हम यूज कर सकते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग. चुस्त एंड पुरजोश. So class, with this we have completed the word meanings of stanza number 2. In case आपको किसी भी किस्म की क्वेरी है तो आप उसको अभी ओवरकम कर सकते हैं because we are going to start the translation of this stanza. So let's begin with the translation. Before that, make sure you're having your accessories कि आप लिखते रहें. आपके पास एक एक चीज़ होनी चाहिए. Register, notebook, wheresoever you want to write it down. So take out your class registers and notebook and do write down the translation of the stanza number 2. So let's begin the translation of the stanza number 2. Continues as the stars that shine. लगातार जैसे चमकते हुए सितारे. And twinkle on the Milky Way.
कहकशां में टिमटिमाते हैं। They stretched in never ending line. वो ना खत्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। Along the margin of a bay, झील के किनारे के साथ 10,000 saw I at a glance. वो ना खत्म होने वाले कतार में फैले हुए थे झील के किनारे के साथ। एक ही नज़र में मुझे 10,000 नरगिस के फूल नजर आ गए। Tossing their heads in sprightly dance, जो झूम रहे थे और खुशी से फूलों के साथ नाच रहे थे। सो क्लास, इसके साथ हमने स्टेंजा नंबर 2 की ट्रांसलेशन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चंस हमें स्टेंजा नंबर 2 के साथ एक स्मॉल से बॉक्स में गिवन है। लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन क्लास क्या लिखा हुआ है? हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डैफोडिल्स? पोइट ने नंबर ऑफ डैफोडिल्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया था? जैसे कि आपने देखा स्टेंजा नंबर 2 में लिखा था दैट एट वंस ही सॉ 10,000 डैफोडिल्स। द पोइट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स in the way that he saw thousands of daffodils tossing and throwing their heads in a sprightly dance. ठीक है जी, this is how he described it. Now, what action is being performed by the daffodils in the breeze? कौन सा एक्शन जो है daffodil परफॉर्म कर रहा है ब्रीज के अंदर? Daffodils is performing a sprightly dance in the breeze and enjoying the nature. This will be the answer of the question number 2. Okay, now with that we are ending stanza number 2 and start reading stanza number 3. Shall we begin the stanza number 3, class? The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. क्लास, इसके साथ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने पैसेज के वर्ड मीनिंग्स को, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन with the difficult word meaning of the passage number 3. Okay class, now let's begin with the word meanings of the passage stanza number 3. जैसे कि आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट वर्ड है क्लास वेव्स। वेव्स क्या होती हैं? वेव्स का सिनोनिम, वेव्स को उर्दू में तो लहरें कहते हैं। वेव्स का सिनोनिम क्या होगा क्लास हमारे पास? टाइड्स। और उर्दू में उसको कहते हैं लहरें। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज जोकंड। जोकंड मीन्स cheerful। ठीक है जी, cheerful। और उसको उर्दू में कहते हैं खुश इखलाक। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज गेज्ड। गेज्ड का मतलब होता है घूरना, देखना। इसका सिनोनिम हमारे पास क्या होगा? स्टेयर्ड। इसको हम लोग क्लास उर्दू में कहते हैं घूरना। नाउ सेकंड लास्ट वर्ड इज वेल्थ। वेल्थ क्या होता है? वेल्थ का सिनोनिम है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी। और इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं सरवत। ठीक है जी। नाउ द लास्ट वर्ड इज ग्ली। ग्ली क्या होता है क्लास? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्ली? हाँ, बस जो ग्ली है क्लास, इसका मतलब होता है जॉय। और इसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? खुशी। आप देख सकते हो एक दफ़ा बोर्ड पे मैंने हर वर्ड का सिनोनिम अलॉन्ग विद द मीनिंग इन उर्दू मेंशन अप कर दिया है यहाँ पे। अब हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं इस स्टेंजा की ट्रांसलेशन को। टेक आउट योर रजिस्टर्स एंड नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर्स और notebook whatsoever you're having right now, and let's begin with the translation of this respective stanza.
रीड करते हैं, the waves beside them danced, but they. झील की लहरें भी खुशी से फूलों के साथ नाच रही थी, लेकिन वो outdid the sparkling waves in glee. खुशी से चमकती हुई लहरों से बाजी ले गए थे. A poet could not but be gay. एक शायर सिर्फ खुश हो सकता था. In such a jocund company. ऐसे मुसर्रत माहौल में. I gazed and gazed but little thought. मैं उनको टिकटिकी बांध कर देखता ही रहा मगर बिल्कुल ना सोचा. What wealth the show to me had brought. मुझे इस मंजर ने कौन सी खुशी अनायत की है. तो क्लास इसके साथ हमने इस पैसेज की स्टेंजा की ट्रांसलेशन भी कवर अप कर ली है. अब हम क्लास करने लगे हैं क्वेश्चन आंसर्स को जो कि हमें इस रिस्पेक्टिव स्टेंजा के साथ मेंशन अप किए गए हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस स्टेंजा. अब यहाँ पे क्लास देख सकते हो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डू वेव्स बिसाइड डैफोडिल्स कंपेयर टू द डैफोडिल्स देमसेल्फ. अच्छा, जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो अपने आप को डैफोडिल्स के साथ किस तरह से कंपेयर कर रही थी. सो क्लास इसका आंसर बनता है, while the waves were lively and sparkling, waves भी lively and sparkling थी, the daffodils were even more joyful and vibrant. Daffodils surpassed the wave in expressing a sense of happiness and glee. So, waves ने अपने आप को daffodils से किस तरह से कंपेयर किया, that it surpassed in the happiness of glee. Daffodils की खुशी को देखते हुए wave उससे पीछे रह गई. So, next question is, what effect do daffodils have on the poet's mood? अब क्लास डैफोडिल का क्या इम्पैक्ट होता है उसके पोइट के मूड के ऊपर. डैफोडिल्स को देखने के बाद, उनको डिस्कवर करने के बाद जो हमारा पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, उनका मूड किस तरह का होगा. सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस. द डैफोडिल्स मेक्स द पोइट फील हैप्पी एंड जॉयफुल. ठीक है, या जैसे हमारे पास वर्ड जोकर था, इसका मीनिंग था सिनोनिम था चीयरफुली जॉयफुल. सो daffodils makes the poet cheerful and joyful, and the company becomes very and the atmosphere becomes very happy and positive. So ये आप इसका आंसर लिख सकते हो. It's not so difficult. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, what does the poet mean by a jocund company? So jocund company का मतलब क्या होता है. jocund company क्लास है, jocund का मतलब cheerful. So jocund company means a cheerful gathering, a cheerful surrounding. Jocund company means this over here. Now let's begin with reading with stanza number 4. So let's focus towards the book. So, for oft when on my couch I lie, I vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So क्लास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स, उसके बाद हम देखते हैं इस स्टेंजा में हमें क्या बताया जा रहा है. सो लेट्स बिगिन द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑफ द स्टेंजा नंबर 4. Okay class, so now let's begin with the stanza number 4 difficult word meanings. As you can see, मैंने कुछ यहाँ पे words लिख दिए ऑलरेडी बोर्ड पे. अब एक एक करके इन वर्ड्स के synonyms को along इनके meanings को हम check out करते हैं. So let's begin with the first word, that is vacant. Vacant क्या होता है? Vacant का synonym होता है हमारे पास class empty. उर्दू में उसको हम कहते हैं खाली होना या खाली जगह. So next word is couch. काउच का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है? काउच क्या एक सिटिंग प्लेस होता है, एक सोफा होता है. तो सिनोनिम क्या होगा हमारे पास क्लास? सोफा. उर्दू में हम इसको क्या कहेंगे? सोफा. Now next word is pensive. Pensive synonym, pensive का क्लास सिनोनिम होता है हमारे पास, that is thoughtful. इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं गमज़दा. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिस. ब्लिस का क्लास सिनोनिम होता है हमारे पास हैप्पीनेस होना या खुशी होना. सो ब्लिस का सिनोनिम क्या होगा हमारे पास? हैप्पीनेस.
इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं खुशी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्लास क्या होता है? सॉलिट्यूड का मतलब होता है आइसोलेशन। ठीक है, सॉलिट्यूड मीन्स आइसोलेशन। उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं? तन्हाई। ठीक है, अब लास्ट वर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है क्लास? प्लेयर। प्लेयर का हमारे पास मीनिंग क्या होता है? प्लेयर क्या होता है? प्लेयर का सिनोनिम है डिलाइट। और इसको हम लोग क्लास उर्दू में क्या कहते हैं? लुत्फ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमने एक एक वर्ड का सिनोनिम और मीनिंग में मेंशन अप कर दिया है। सो इट वॉन्ट बी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं इस स्टेंजा नंबर 4 की ट्रांसलेशन को। सो लेट्स बिगिन विद द ट्रांसलेशन ऑफ द स्टेंजा नंबर 4 एंड डू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। इन केस कोई वर्ड हमसे स्किप अप हो गया, हम उसका मीनिंग नहीं लिख सके, तो आप लोग ट्रांसलेशन इसको सुन के लिख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द ट्रांसलेशन क्लास। For oft when on my couch I lie, अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, इन वेकेंट और पेंसिव मूड, खाली जहन के साथ और अफसुर्दा हालत में, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, इनका नज़ारा तसव्वुर में आ जाता है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो तन्हाई में राहत देता है, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेयर फिल्ड, तब मेरा दिल खुशी से सरशार हो जाता है, एंड डांसेस विद डैफोडिल्स, और नरगिस के फूलों के साथ रक्स करने लगता है। सो क्लास, इसके साथ हमने इस पैसेज की ट्रांसलेशन भी अब कवर अप कर ली है। सो इस स्टेंजा की नाउ अब हम स्टार्ट करने लगे इसके कुछ क्वेश्चंस जो हमें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो लेट्स बिगिन विद आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्लास क्या है? What happens when the poet lies on the couch in a vacant or in a pensive mood? So when the poet lies down in the couch in a pensive mood, he began to thought and ponder over the sight that he viewed of the beautiful daffodils. ठीक है जी? What is the inward eye that poet mentioned? ठीक है, the inward eye the poet has mentioned is the beautiful scene that he has experienced. ठीक है, इसमें इनवर्ड आई होता है क्या क्लास? इनवर्ड आई उसके अंदर की इसकी सोच, उसके अंदर की जहनीत क्या तस्वर कर रही, क्या देख रही है। बिकॉज व्हेन द पोइट लाइज ऑन हिज वेकेंट स्पेसेस, अपने जो काउच पे आराम कर रहा होता है, दैट टाइम उसके माइंडसेट में क्या आता है? उसके दिमाग में वो तस्वर आता है, वो ख्याल आता है जो उसने आंखों से देखा होता है, वो खूबसूरत मंजर उसको देख रहा होता है। ठीक है, so okay, now third question class, as you can see, how does the memory of the daffodils affect the poet in the end? So daffodils की कौन सी मेमोरी से पोइट को अफेक्ट किया है in the end? So daffodil की मेमोरी क्लास देखिएगा कुछ इस तरह की है। The dance of the daffodil affects the poet's memory in the end and it remains in his memory. ठीक है, क्योंकि पोइट ने जब daffodils को देखा था, in the breeze they were fluttering and fluttering, so वो इनका जो डांस था ना, वो उसके एक मेमोरी में रह गया और वो उसके एंड तक उसकी मेमोरी में रहेगा। ये इस क्लास क्वेश्चन का आंसर था। विद दिस हमने क्लास इस चैप्टर की डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स अलॉन्ग विद ट्रांसलेशन मैंने कवर अप कर ली है।